टू गुड। सो गाइस, पार्ट वन ऑफ हायर परचेज के अंदर हम लोग ने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू कर लिए थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर टू से, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या कहते हो गाइस? कैन वी? टू गुड। एक रिमाइंडर वंस अगेन, आशीर्वाद बैच जो नवंबर 22 के लिए क्रैश कोर्स है, आप प्लीज़ ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? ये बैच 28 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है, एंड यू कैन टेक्निकली स्पीकिंग रॉक दिस बैच। ठीक है गाइज, एजुकेटर्स कौन कौन है? राहुल मलकान सर है जो अकाउंट्स लेंगे, अमित पॉपली सर है जो लॉ लेंगे, सचिन गुप्ता सर है जो कॉस्टिंग लेंगे, और अरविंद तुली सर है जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही लेंगे। गाइस, बैच का शेड्यूल क्या होगा? अरविंद तुली सर सबसे पहले सुबह 11 बजे चालू करेंगे, 11 to 12:30, एंड गाइस देन सचिन गुप्ता sir will come. He'll take 12:45 to 1:45. Then guys, Rahul Malkan sir will come and he will be taking accounts from 3 to 4, and then Amit Popli sir will take law at 6 to 7 in the evening. So technically speaking, as I told you, we are going to rock. Love you guys. Join this batch now, and I'll start and continue with question number 3. चलिए, रेडी हो ना आप सब लोग? टू गुड। Messrs. Amers brought 6 scooters from Messrs. Bhanu on 1st of April. 6 scooters from Messrs. Bhanu on 1st of April on the following terms. Down payment was 3 lakh, first installment 159, second installment 147, third installment 165. Interest is charged at the rate of 10% per annum. Mr. Amar provides depreciation at the rate of 20% on diminishing balance method. On 31st March 2018, that is third installment हो जाएगा. Messrs. Amers failed to pay the third installment, upon which Messrs. Bhanu repossessed 2 scooters. 2 scooters ले लिए भाई. Messrs. Bhanu agreed to leave other 4 scooters with Mr. Amar and adjusted the value of repossessed scooters against the amount due. The scooters taken over were valued on the basis of 30% depreciation on return down value method. The remaining amount, or the balance of the remaining in the vendor's account after the adjustment, was paid to Messrs. Amar after 5 months with an interest at the rate of 15% per annum. Messrs. Bhanu incurred repairing expenses of 15,000 on repossessed scooter and sold the scooters for 1,05,000 on 25th of April 2018. You are required to calculate the cash price of the scooter and interest paid on each installment. Reverse calculation. Prepare Scooter's account and Messrs. Bhanu's account in the books of Amar. Fantastic question. And prepare goods repossessed account in the books of Messrs. Bhanu. Guys, extremely lovely question. मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर सारी ही कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है गाइस. पार्शियल रिपोजेशन का कॉन्सेप्ट कवर्ड है, असेट अकाउंट पूछा है, वेंडर अकाउंट पूछा है, और वेंडर के बुक में असेट रिपोजेशन अकाउंट भी पूछा है. इससे अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको नहीं मिल सकता है. फैबुलस क्वेश्चन है. तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया था, उसी फाइल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड आई एम सेइंग वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3. और सबसे पहला वर्किंग नोट होता है हमारा पेमेंट शेड्यूल बनाने का. सो ये हमारा फर्स्ट वर्किंग होता है गाइस. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अमाउंट, ये आता है प्रिंसिपल, ये आता है हमारा इंटरेस्ट, और ये आ जाता है हमारा इंस्टॉलमेंट. गाइस, ओपनिंग कैश प्राइस हमें नहीं पता है, यही तो हमें ढूंढना है. सो ठीक है, सो ओपनिंग कैश प्राइस हम लोग ढूंढ लेंगे. सो वी हैव ओपनिंग कैश प्राइस. गाइस, लेस द डाउन पेमेंट, एंड डाउन पेमेंट लेस करना है, और डाउन पेमेंट उन्होंने कहा है 3 लाख का. गाइस, डाउन पेमेंट पूरा ही अमाउंट प्रिंसिपल को लग जाता है. देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट ऑन दैट, एंड इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो 3 लाख. So guys, we are done. Then we'll have first installment 159. Guys, then we'll have second installment for 147. And guys, then we will have third installment, and the third installment will be for 1,65,000. And then we will be technically speaking done with this calculation. So I'll start with 1,65,000. अब तक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी होनी चाहिए. सो इंटरेस्ट कितना परसेंट था? 10%. सो 1,65,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110. गाइस, 15,000 मेरा इंटरेस्ट होगा, तो 1,50,000 मेरा प्रिंसिपल होगा.
अब एग्जैक्टली क्लियर विद दिस। और यहाँ पे 165 से नहीं, यहाँ पे अपना बैलेंस आ जाना चाहिए नील। तो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल वाज 150। I'll push it up 150। 150 प्लस 147 हो जाएगा अभी। सो 150 प्लस 147, 297 के अंदर 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, विच इज़ 27,000। सो 147 में 27,000 डाल दूँ तो 120 प्रिंसिपल का अमाउंट बन जाएगा। 120 प्रिंसिपल का अमाउंट बन जाएगा। 150 प्लस 120 इज़ 270। So guys, we have 270 plus 159 is 429 into 10 divided by 110. I'm getting an answer of 39,000. This is fantastic. So 159 minus 39,000, I'm getting 120 once again. So I'm putting on 120 once again. This comes to 390. 390 plus 3 lakh, answer comes to 6,90,000 is the amount. Tell me, are you getting this correct? और गाइस 6,90,000 स्कूटर की वैल्यू थी, तो 6,90,000 को डिवाइड बाई 6 करता हूँ। सो वी हैव 6,90,000 डिवाइडेड बाई 6, आंसर कम्स टू 1,15,000 ना एक स्कूटर की वैल्यू हो गई। चलो, इसके साथ साथ वर्किंग नोट नंबर 2 में टेकन ओवर शेड्यूल भी बना देता हूँ ताकि मैं अकाउंट्स फटाफट कर पाऊँ। सो गाइस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन रीपोजेशन, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन बहुत सिंपल करते हैं। दिस इज़ आर कैलकुलेशन एंड दिस इज़ वेंडर का कैलकुलेशन। सो हमारे और वेंडर का डिफरेंस निकालते हैं गाइस, ओपनिंग कैश प्राइस। और ये जो कैलकुलेशन हो रही है गाइस फॉर 2 स्कूटर्स हो रही है। वो 2 स्कूटर लेके जाता है, बाकी के 4 स्कूटर अपने पास रख रहा है। अब एक स्कूटर की वैल्यू 1,15,000 आई थी, तो 2 स्कूटर की वैल्यू चालू हो गई 2,30,000। 2,30,000 गाइस, लेस द डेप्रीशिएशन। हम लोग डेप्री चार्ज कर रहे थे 20% WDV से, और वेंडर जो लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है 30% WDV से। सो पहले मैं अपना कैलकुलेशन कर लेता हूँ। दिस इज़ द डेट दैट वी आर बाइंग ऑन 1st April 2015। This is 31st March 16. This is 31st March 17. This is 31st March 18. Tell me, am I clear with that? और 31st March 18 पे ही repossession हुआ है। जकास। So guys, 2,30,000 का 20% WDV is 46,000. 230 minus 46 is 184. 184 का लेस डेप्रीशिएशन 20%। सो इसका डेप्रीशिएशन 20% इज 36,800 गाइज, माइनस 1,84,000। आई एम गेटिंग 2,20,800 लेस द डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20%। सो इंटू 20% इज, ये माइनस करना था, मैंने प्लस कर दिया है, गलत है। सो 1,84,000 का 20% माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 147,200। ब्यूटीफुल। एंड 147,200 का 20% विल बी 29,440। सो गाइज, minus 147,200, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 1,17,760। जकास है। चलिए, 2,30,000 into 30% depre 69,000 minus 2,30,000, I'm getting 161. 161 का 30% is 48,300. Guys, balance will be 112,700. 112,700 का 30% depre will be 33,810. minus 112,700, I'm getting 78,890. मैं कैलकुलेशंस वापस से एक बार चेक कर लूँगा।
2,30,1 2 3 117,760 बरोबर है, एंड 2,30,1 2 3 78,890 बरोबर है। तो हमारे बुक्स में वो असेट की वैल्यू 117,760 होगी और वेंडर ये 78,000 पे लेके जा रहा है। तो गाइस हमारा यहाँ पे सिंपल सा जर्नल एंट्री बनना चाहिए कि वेंडर वो असेट लेके जा रहा है 78,890 में, बट हमारे बुक में ये असेट था कितने का, 1,17,760 का। तो -117,760 गाइस 38,870 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। चलो अब हम सारे कैलकुलेशंस के साथ रेडी है। अब एक और कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। कैलकुलेशन नंबर 3 इज रीपोजेशन का प्रॉफिट और लॉस। गुड्स रीपोजेस्ड की कहानी भी बना लेते हैं ताकि सारे वर्किंग नोट क्लियर हो जाए। सो गाइस असेट टेकन ओवर, कौन से वैल्यू पे असेट लेके आए थे हम लोग, 78,890 पे टेक ओवर किया था। एट दी एक्सपेंसेस, रीफर्निशिंग एक्सपेंसेस था 15,000 रुपये का खर्चा किया उस पर। सो 78,890 प्लस 15,000 रुपये का खर्चा किया, 93,890 का खर्चा किया, माइनस गाइस क्या हो गया, सोल्ड। सो माइनस सोल्ड हो गया 1,05,000, तो -1,05,000 का सेल हो गया। एंड गाइज 11,110 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट आने वाला है रीपोजेशन पे। जकास है, टू गुड। कैलकुलेशंस देख लेते हैं गाइज। कैश प्राइस ऑफ द असेट इज 6,90,000, दिस इज डन। आप चेक कर लो, कैश प्राइस ऑफ द असेट इज 6,90,000। अब आ जाते हैं अकाउंट्स में। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा था उन्होंने अपने को, कैश प्राइस एंड रीपोजेशन वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं मेन, स्कूटर अकाउंट और भानु अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमर। सो आई विल से बुक्स ऑफ अमर। और गाइस कौन सा अकाउंट बनाने को कहा है उन्होंने, स्कूटर अकाउंट बनाने को कहा है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब मैं डिज़ाइन नहीं बना रहा हूँ अकाउंट बना के। तो स्कूटर हमने खरीदा था 1/4/2015 पे। किससे खरीदा स्कूटर, स्कूटर हमने खरीदा मेसर्स भानु से, और स्कूटर हम लोग ने खरीदा 6,90,000 पे। गाइस 31 मार्च 16 को हम लोग यहाँ पे डेप्री चार्ज करेंगे बाय डेप्रीशिएशन। 6,90,000 का 20% डेप्री इज़ 138 माइनस 6,90,000 इज़ 552 का बैलेंस बचेगा। एंड गाइस 552 का बैलेंस हम लोग नेक्स्ट ईयर ओपन करेंगे। ये डेट होगा हमारा 1/4/16 एंड दिस विल बी 31st ऑफ मार्च 17। यू विल से दिस इज बाय डेप्री 20% into 20%, 1,10,400, and this will be 31st of March 17 by balance. So guys 552 में से ये बैलेंस निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा 441,600। ये ओपन होगा 441,600 में। दिस विल बी ऑन 1/4/17। 31 मार्च 18 पे पहले आप डेप्रीशिएशन चार्ज कर दीजिए इसका 20%। सो बाय डेप्री 20%। सो गाइज अपना डेप्री आ जाएगा 88,320। एंड गाइज 31 मार्च को असेट रीपोजेस किया है और वहाँ पे लॉस आएगा, तो यहाँ पे आएगा बाय मेसर्स भानु एंड गाइज बाय लॉस। सो भानु ने असेट रीपोजेस किया है 78,890 और गाइज हमें लॉस हुआ है 38,870 का लॉस हुआ है। तो अब हमारा बैलेंस कितना आना चाहिए, 441,600 माइनस 88,320 माइनस 78,890 माइनस 38,870। अपना बैलेंस आ जाना चाहिए 235,520।
20। जकास है। ये कौन सा अकाउंट बनाया हम लोग ने? स्कूटर अकाउंट। चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्कूटर अकाउंट गाइस। 552 का बैलेंस, यस। 441 का बैलेंस, यस। एंड फाइनल बैलेंस आ जाना चाहिए हमारा 235 520, 235 520। टू गुड, चकास। गाइस एक और अकाउंट बनाने के लिए उन्होंने कहा है। कौन सा अकाउंट बनाने के लिए कहा है उन्होंने अकाउंट बनाने के लिए कहा है मेसर्स भानु अकाउंट। अब भानु अकाउंट में क्या आएगा गाइस? 1/4/2015 बाय असेट हमने खरीदा 690 का, एग्जैक्टली 1/4/15 को गाइस। सबसे पहले तो 1/4/15 को डाउन पेमेंट हो जाएगी, 1/4/15 को टू बैंक। इसका पेमेंट शेड्यूल पूरा रेडी है ऑन द टॉप। सो 690 का कैश प्राइस, 3 लाख का डाउन पेमेंट, 3 लाख का डाउन पेमेंट। दिस इज टू गुड गाइज। अब 690 में से अगर 3 लाख का डाउन पेमेंट हो चुका है तो 390 बचता है, जिसपे 10% इंटरेस्ट आ रहा था। सो बाई इंटरेस्ट आ जाएगा 39,000। और हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 31 मार्च 2016 को। ये इंटरेस्ट का डेट भी 1/4/15 नहीं आएगा, 31 मार्च 2016 को। फर्स्ट पेमेंट कितने का था सर? हमारा फर्स्ट पेमेंट था 1,59,000 का टू बैंक अगेन, 1,59,000। सो गाइस 6,90,000 प्लस 39,000 माइनस 3 लाख माइनस 1,59,000। आप अपने बुक्स में चेक कर सकते हो। आपका बैलेंस 270 दिखना चाहिए फर्स्ट ईयर के एंड पे। That is 6,90,000 plus 39,000 is 729, is 729, and this is going to be 1/4/2016. This is by balance brought down 729. You are again going to charge an interest on 31st March 2016. 729 थोड़ी 270, एंड 270 पे 10% इंटरेस्ट आएगा, तो बाय इंटरेस्ट 27 और हमारा पेमेंट था 147 का। सो 31st March 2017, नॉट 16, 17, वी विल से टू बैंक, एंड टू बैंक में 147 का पेमेंट। एंड गाइस 31 मार्च 2017 पे टू बैलेंस गाइस 270 प्लस 27, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 297. So total of 297 minus 147, I'll get a balance of 150. जकास। अब आ जाता है 150 पे। माई ओपनिंग विल बी ऑन 1/4/17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स 150। 150 पे 10% का इंटरेस्ट आ जाएगा 31 मार्च 2018 पे बाय इंटरेस्ट, एंड दिस टाइम इंटरेस्ट विल बी 15,000। 165 का पेमेंट हम कर नहीं पाया है। 31 मार्च 2018 पे असेट रीपोजेस हो गया है, तो यहाँ पे टू असेट आ जाएगा। और असेट रीपोजेस कौन से वैल्यू पे हुआ है? 78,890 पे, 78,890 पे असेट रीपोजेस हो गया है। सो गाइस 165 के बैलेंस में से असेट चला गया, मतलब इतना पैसा हमने एडजस्ट कर लिया, minus 78,890. So I'm left with a balance of 86,110, and this will be on 1st of April 19 by balance 86,810. अकाउंट सेटल कब हुआ? अकाउंट सेटल हुआ आफ्टर 5 months, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। गाइस
1 सितंबर 2019 को यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट कितने का लगेगा सर? इंटरेस्ट लगेगा 15% फॉर 5 मंथ्स। जकास, into 15% into 5 divided by 12, I'm getting an interest of 5382, and guys 86,110 into 15% into 5 divided by 12, it's 5382 plus 86,810, 91,492 का पेमेंट कर दो, 91,492 का पेमेंट कर दो टू बैंक, पेमेंट कर दो 1 सितंबर को, और इस अकाउंट को बंद कर दो और मुझे जकास बोल दो, और इस अकाउंट को चेक भी कर लेते हैं। भानु अकाउंट का चेकिंग करते हैं। 270 का बैलेंस, यस सर। सेकेंड ईयर 150 का बैलेंस सर, यस सर। 79,000, 86,110 बच गया, 86,110 बच गया, 91,492 पे कर दिया, जकास। टू गुड गाइज, आगे जाते हैं। रीपोजेशन का अकाउंट बनाना। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारा मेन। क्वेश्चन नंबर 1 था पेमेंट शेड्यूल बनाना, क्वेश्चन नंबर 2 था कि हमें असेट अकाउंट बनाना है और मेसर्स भानु अकाउंट बनाना है। अब गाइज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स भानु, इन्होंने क्या पूछा है? मेसर्स भानु के बुक में इन्होंने पूछा है, मेसर्स भानु के बुक में गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। सो गाइज वी हैव गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। अगर ये भी आपको बराबर से पता हो तो ये भी वर्किंग हमारी रेडी है। तो ये रहा वर्किंग। असेट को कितने पे रिपोजेस किया? 78,890, 15,000 रुपये का खर्चा किया। गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट 31 मार्च बोलूँगा 2018 टू किससे रिपोजेस कर लिया भाई? रीपोजेस कर लिया मेसर्स अमर से, टू मेसर्स अमर 78,890। गाइस 15,000 रुपये का खर्चा किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रीपोजेशन पे। सो 25 अप्रैल तक ये खर्चा किया होगा, या 31 मार्च को भी लिख सकते हो आप। टू बैंक खर्चा किया तो वो गुड्स रिपोजेस अकाउंट में डाल दोगे। 15,000 रुपये का खर्चा हो गया, और 25 अप्रैल 98 को ये हमने बेच डाला 1,05,000 में। तो बाई बैंक भाई हम लोग ने बेच लिया 1,05,000 पे। तो गाइस 78,890 प्लस 15,000 का खर्चा किया, माइनस 1,05,000 में बेच दिया 11,110 रुपये का टू प्रॉफिट आ गया 25 अप्रैल 2018 को, और ये अकाउंट 1,05,000 पे बंद हो जाएगा। टेल मी दैट यू आर सॉर्टेड ऑन दिस। 1,05,000, 1,05,000, आर वी सॉर्टेड ऑन दिस गाइस? यस सर। 78,000, 15,000 रुपये का खर्चा, 1,11,110 रुपये, काम खत्म, एंड वी हैव अकाउंट टैली, चकास। Guys, very good question, and this brings an end to question number 3. So I'll go to question number 4, guys. Question number 4, first one. On 1st Jan 2011, Kasturi acquired a pickup van on hire purchase from Soria Limited. The terms of the contract are as follows. The cash price of the van is 25,000. The rupees 10,000 were balance in signing the contract, so 15,000 रुपये बचे. The balance was paid in annual installments of 5,000 plus the interest. Guys, this is कैश प्राइस दिया, HP प्राइस दिया है, सब कुछ ही दिया हुआ है। सो बेसिकली कैश प्राइस 25,000 था, डाउन पेमेंट 15 निकाल दो, 10 निकाल दो, 15 बचे, एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5,000 प्लस इंटरेस्ट अलग से। सो दिस 5,000 इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कॉलम में लिखना है। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Depreciation at the rate of 10%, you done. You are required to show the van account and Shaurya account in the books of Kasturi from 1st Jan to 31st December 2003. यार इससे एक सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं मिल सकता। May 20 के RTP में आया था। मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिख जाए ना हम लोग को, तो हमें डांस करना चाहिए, चांस पे डांस, क्या कहते हो? यस सर। सर तो फर्स्ट वर्किंग नोट आपका आ जाएगा पेमेंट शेड्यूल, और पेमेंट शेड्यूल हम लोग कहाँ से चालू करेंगे? ओपनिंग
कैश प्राइस, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। ओपनिंग कैश प्राइस 25,000 रुपये का था, लेस द डाउन पेमेंट 10,000 रुपये का हो गया, 15,000 रुपये का बैलेंस बचता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000, 5,000 प्लस इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 6% पर एनम। 15,000 पे 6% पर एनम इज़ 900। 5,900 विल बी योर टोटल इंस्टॉलमेंट। ये 10,000 पूरा प्रिंसिपल में, नो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट 10,000। guys balance is 10,000 less the second installment 5,000, 5,000 guys 600 रुपये का इंटरेस्ट, आई एम गेटिंग टोटल ऑफ 5,600। guys now my balance is 5,000 less the third installment of also 5,000। guys we are done on to nil, so this is 5,000, this is 300, this is 5,300। गाइस टोटल आ जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 5, माई टोटल इज 25,000 का कैश प्राइस, 900 900 1800 का इंटरेस्ट, एंड दिस इज 25,000। 25,600 लगेगा आपको, 26,800 का गाइस HP प्राइस। दिस इज कैश प्राइस, दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज HP प्राइस। क्या बनाने के लिए कहा उन्होंने, मतलब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर इन द बुक्स ऑफ कस्तूरी, सो दिस इज बुक्स ऑफ कस्तूरी, और कस्तूरी की बुक्स में सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है, वैन अकाउंट। यार इससे सिंपल कोई अकाउंट नहीं हो सकता। 1 Jan 2001 ले लो या 11 ले लो, we'll say van to Shaurya, so van to Shaurya कितने में ख़रीदा हम लोग ने, 25,000 में ख़रीदा। 31 December 11 बाय डेप्रीशिएशन, डेप्री भी SLM से चार्ज करना था गाइस। 2,500 बैलेंस निकाल लेंगे। 31 December 12 फिर से एक बार बाय डेप्रीशिएशन 2,500 बैलेंस निकाल लेंगे, एंड गाइस फाइनली फिर से एक बार 31 December 2012 guys you will say by depreciation 2,500 and your balance now, so 25 minus 2,500 is 22,500। ओपनिंग आ जाएगा 22,500, बैलेंस आ जाएगा 20,000, ओपनिंग आ जाएगा 20,000 एंड फाइनल बैलेंस आ जाएगा 17,500। तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग आ जाएगा 17,500। टेल मी जकास, दिस इज वैन अकाउंट 17,500, 17,500 डन। इससे सिंपल क्या हो सकता है गाइस, वैन अकाउंट के बाद आ रहा है मेरे पास शौर्या अकाउंट। सो आई विल हैव शौर्या अकाउंट। शौर्या ने पहले 1 Jan 11 पे बाय क्या ख़रीदा, वैन। तो हम वैन ख़रीद लेते हैं 25,000 रुपये का। 10,000 रुपये का भाई डाउन पेमेंट कर लो, 1 Jan 11 पे ही डाउन पेमेंट हो जाएगा टू बैंक 10,000। 15,000 बचे, उस पर इंटरेस्ट आएगा 31 December 11 को बाय इंटरेस्ट। यू हैड एन इंटरेस्ट ऑफ 900 एंड गाइस 31 December 11 को ही आ जाएगा टू व्हाट सर बैंक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,900। ये सब करने के बाद 25,000 प्लस 900 माइनस 15,900 आपका बैलेंस आ जाना चाहिए 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये का बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 600। आप 5,600 का बैलेंस पे करोगे, बैलेंस आ जाएगा 5,000। आप अकाउंट 5,000 पे ओपन करोगे, इंटरेस्ट आ जाएगा 600। आप 5,300 पे अमाउंट पे कर दोगे, अकाउंट सेटल, अकाउंट सेटल, अकाउंट सेटल। टेल मी दैट वी आर डन। सो दिस इज़ माई डेबिट साइड, दिस इज़ माई क्रेडिट साइड एंड वी आर सॉर्टेड। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए एग्जामिनेशन में यार। 10,000
फर्स्ट ईयर का बैलेंस, सेकेंड ईयर का बैलेंस 5,000, 5,300 पेड, अकाउंट खत्म। टेल मी चकास। एंड वी आर रीचिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 20 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 20 का पेपर। मेरे ख्याल से ये दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है अभी हमें जो पेपर में आया है। सो ऑफ लेट ये थोड़ा रेगुलर होते जा रहा है ना एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 20 का पेपर। ठीक है, मैं एक गिलास पानी पी के आता हूँ। आई जस्ट टेक अ म्यूट ऑन दिस। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। On 1st April 2017, Mr. Nilesh acquired a tractor on hire purchase from Raj Limited. The terms of the contract are as follows. Cash price 11 lakh 50 दिया हुआ है, 2 lakh 50,000 is paid as down payment. So 1150 minus 250, guys, we are left with 9 lakh. The balance was paid with annual installment of 3 lakh plus the interest at the end of each year. Now this installment does not include the interest because 3 lakh का अगर installments है 3 installments कर देंगे तो हो जाएगा 9 lakh plus the interest. Interest is 8%. Depreciation is straight line method. Guys, कितना simple. I guess it's similar to the last question. Mr. Nilesh adopted interest suspense method. The only difference is last time हम लोग ने credit purchase method follow किया था, इस time interest suspense method follow करना है और कोई भी difference नहीं है. Prepare the tractor account, the interest suspense account and Raj account in the books of Mr. Nilesh. So इस time 3 account बनेंगे, but फिर भी वही simple level है. 1st April 2017 से start करते हैं. Question number 5. I'll start with my working note number 1. So working note number 1 is always going to be my payment schedule. So payment schedule हम लोग कहाँ से चालू करेंगे guys? Opening cash price से चालू करेंगे, which is 11,50,000. So 11,50,000, that is my opening cash price. इसके अंदर principal होगा, फिर interest होगा और फिर इंस्टॉलमेंट बनेगा लेस डाउन पेमेंट 2,50,000 का है। ये पूरा ही प्रिंसिपल होता है, इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और इंस्टॉलमेंट 2,50,000 होता है। सो नाउ वी हैव अ बैलेंस ऑफ 9 lakh लेस द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 lakh. 3 lakh is principal. Guys, we have an interest at the rate of 8% per annum. 9 lakh पे 8% per annum is 72,000. अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 372. तो अपना बैलेंस बचेगा अभी 6 lakh. गाइस, अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज गोइंग टू बी 3 lakh, बट इंटरेस्ट तो 6 lakh पे ही लगेगा. तो 6 lakh पे 8% इंटरेस्ट इज 48,000. 3 lakh is principal, 48,000 is interest, 3,48,000 is installment. 6 lakh minus 3 lakh, my answer comes to 3 lakh. Once again, I'll go for third installment of 3 lakh, and guys, 24,000 will be my interest. So 3 lakh minus 24,000 or plus 24,000 is 3,24,000, and we are done. Nil. Cash price 11,50,000, interest 72,48, 24, 144 का total interest plus 11,50,000. I'm getting a total of 12,94,000. Tell me Jackass. Guys, second, after the payment schedule we will have the accounts. Now किसके बुक्स में हो? So this is books of Mr. Nilesh. अब मिस्टर नीलेश ने क्या एक्वायर किया है? मिस्टर नीलेश ने असेट एक्वायर किया है, ट्रैक्टर. तो सबसे पहला अकाउंट बनाऊंगा मैं ट्रैक्टर अकाउंट. ट्रैक्टर कब खरीदा? 1st April 17 पे खरीदा. 2, किससे खरीदा? राज लिमिटेड से खरीदा. कितने में खरीदा? 11,50,000 में खरीदा. 31st March 2018 को आप इस पे डेप्री चार्ज करेंगे. सो बाई डेप्री, एंड डेप्री इज 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. यार क्या करते हैं ये लोग? 11,50,000 का 10% डेप्री 1,15,000. 31st March 19 बाई डेप्री 1,15,000. 31st March 20 बाई डेप्री 1,15,000.
11 lakh 50 minus 1 lakh 50 बैलेंस 10 लाख 10 लाख पे नेक्स्ट ईयर ओपन कर दो माइनस 1 लाख 50 का डेप्रीशिएशन इज 850 गाइस 850 पे नेक्स्ट ईयर ओपन कर दो और आपका इस साल का क्लोजिंग आ जाएगा माइनस 1 लाख सॉरी कैलकुलेशन गलत जा रहा है 1115 का 10% डेप्रीज 1,15,000 एंड नॉट 150 सो गाइस 115 का डेप्री है ओके दिस इज 1115 minus 1,15,000 आई एम गेटिंग 1035 एज बैलेंस टू गुड सो अब 1035 पे नेक्स्ट ईयर ओपन करो और 1035 पे 1,15,000 माइनस करेंगे तो 920 आ जाएगा 920 पे नेक्स्ट ईयर ओपन करेंगे और 920 माइनस 1,15,000 का डेप्रीशिएशन 8,05,000 पे ये 3 साल का असेट अकाउंट बंद होगा चेक दैट गाइज असेट अकाउंट 8,05,000 पे बंद हो गया 1150 1035 एंड 820 दिस इज माय ट्रैक्टर अकाउंट डन गाइज ट्रैक्टर अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट बनाऊंगा मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट चलिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट सो गाइस यहाँ पे भी इंटरेस्ट सस्पेंस में भी 1 अप्रैल 2017 जर्नल एंट्री क्या आएगा असेट बाय करने का पता है असेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर तो यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में टू वेंडर दैट इज टू राज लिमिटेड टोटल इंटरेस्ट था हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस था 144 गाइस ईयर एंड पे इंटरेस्ट चार्ज करते रहना 31st March 2018 आई विल से बाय इंटरेस्ट अमाउंट इज 72,000 31st March 2019 I will say buy interest 48,000 and guys 31st of March 2020 I'll say buy interest suspense में buy interest 24,000 guys balance 72 open next year guys balance 24 open in next year and the account gets tallied that's the only difference this is my interest suspense account this is my debit side and this is my credit side interest suspense account 144 72 24 24 closed जगास सर एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको कौन सा बेटा सर आपको बनाना पड़ेगा हमने किससे बाय किया था सर हमने राज से बाय किया था तो सर राज का भी तो अकाउंट बनाना पड़ेगा तो राज का अकाउंट बनाते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड असेट खरीदा 1/4/2017 को बाय असेट खरीदा 11,50,000 का उसी दिन बाय इंटरेस्ट पूरा बुक कर दोगे दैट इज इंटरेस्ट सस्पेंस एंड दैट कम्स टू 144 गाइस 31st March 2018 को आपने इंस्टॉलमेंट पे किया फर्स्ट दैट इज डाउन पेमेंट पे किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज 2,50,000 गाइस 31st सॉरी ये आपने डाउन पेमेंट 31st मार्च को नहीं ये डाउन पेमेंट आपने 1 अप्रैल 17 को ही कर दिया था और 31st March 2018 को आपने अब किया इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टू बैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था 372 सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था 348 थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था आपका 324 दिस इज गोइंग टू बी 31st March 19 and this is going to be 31st March 20 this is to bank इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं होंगे बिकॉज इंटरेस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं टू बैंक गाइज 11,50,000 प्लस 144 माइनस 250 माइनस 372 आपका बैलेंस आ रहा है 672 पे ओपन होगा माइनस 348 आपका बैलेंस आएगा 324 सो दिस इज 324 एंड गाइज योर अकाउंट इज टैलीड चेक कर लेते हैं राज का अकाउंट भी तो राज गाइस 672 324 डज इट टैली इट डज टैली
सो गाइस, दिस आर माय 5 क्वेश्चंस डन। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसका एक थर्ड पार्ट भी मुझे बनाना पड़ेगा, एंड लेट्स से पॉसिबली शायद फोर्थ पार्ट नहीं बनाना पड़े, पर इसको देखा जाएगा। सो गाइस, आई विल एंड अप माय पार्ट नंबर 2 ऑफ हायर परचेज राइट हियर, एंड मीट मी एट पार्ट नंबर 3। लव यू।